हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी अर्पिता। सो आज हम एक्सरसाइज 2.4 कर रहे हैं, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से। इस पहले मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है, वो क्वेश्चन नंबर 1। जो कहता है वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, 1 सेकेंड। ओके, सो ये रहा verify that the numbers given alongside of the cubic polynomial below are their zeros. ठीक है, so what is this question saying? ये क्या कह रहा है क्वेश्चन? नंबर गिवन alongside of the cubic polynomial, ये रहा क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारा। ओके, दैट इज़ नथिंग बट p of x कहते हैं हम। ओके, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के साथ ज़ीरोस दिया हुआ है। ओके, सो ये रहा ज़ीरोस, 1 2 1 2 3। ओके, 1 2 3 ज़ीरोस दिए हुए, तो ज़ीरोस का मतलब रूट्स भी होता है। ठीक है, सो ज़ीरोस दिया है। सो क्या करना है, इस दिया हुआ इंफॉर्मेशन को क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है कि ये ज़ीरोस इस पॉलिनोमियल के है या नहीं। ठीक है, मैं आगे बताऊंगी कैसे करते हैं। ठीक है, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स इन ईच केस। सो इधर और हम लोग वेरीफाई करना है क्या चीज़ को, रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरो। ठीक है, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोस एंड द कोएफिशिएंट इन ईच केस। ठीक है, ज़ीरो और कोएफिशिएंट के रिलेशन होता है। मैं ये भी बताऊंगी कैसे किया जाता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। व्हाट इज गिवन, वेरीफाई द नंबर्स गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल below are the zeros. So along with this polynomial you are given with the zeros or roots of this polynomial, cubic polynomial. So you need to verify whether the given zeros are the roots or zeros of this polynomial. Okay, and also you should verify the relationship between the zeros and the coefficient of in each case. This also we will do and I'll show you how to do it. Is that clear? Okay, so now let's proceed. Okay, for first thing is what will happen is, we know that what are zero. Okay, suppose if I take p of x as a polynomial. Okay, if p of x is a polynomial, okay, if p of x is a polynomial, zeros, okay, zeros, or we also call it as roots, right? Zeros are roots of the polynomial are those values. Okay, what are those? These are such values. Okay, those values of x. Okay, so what are in simple zeros or roots? They are values of x. Where do these values we get from? These values we get from by solving the cubic equation. Okay, these are the values of x. Since we get these values of x, so hence these values are such that they will make the polynomial, which makes the polynomial 0, right? So what does it mean? It makes the polynomial 0. Okay, 0 in the sense it is value. Okay, value, that is 0 is nothing but this 0 I am talking. I am not talking about roots here. Okay, means whenever you substitute the value, okay, of x, whatever you get out of this polynomial back into the expression, you will have to get that expression that p of x should be equal to a 0. Okay, so equal to 0. So this means then that root is belongs to the polynomial. ठीक है, so जब भी हम एक polynomial लेते हैं, p of x लेते हैं, और उसका roots जो होता है, उस roots क्या होते हैं, वो value of x होते हैं। ठीक है, so जिस value of x को हम वो पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तब हमको वो वैल्यू जो होता है पॉलिनोमियल को 0 आना चाहिए। ओके, तब हम कहते हैं या वो वैल्यू ऑफ x जो मिला था हमको पॉलिनोमियल का, वो उसी पॉलिनोमियल का रूट्स है। ओके, अगर p ऑफ x 0 नहीं आता तो वो रूट्स उस पॉलिनोमियल को बिलोंग नहीं करता। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। सो ये इस स्टेटमेंट को रख के अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये पहला पार्ट जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। ओके, so if you keep in mind the statement what I have written here, okay, this statement, and solve the problem, then the first part of the problem is easily done. Okay, so now what I am doing, so in our case we know that the given polynomial is p of x is equals to 2x cube plus x square
minus 5x plus 2, correct? So this is the polynomial given. So what I said, if p of x is a polynomial, उसके zeros और roots of the polynomial are those values of x. So along with this polynomial I have been given the roots. Okay, what are the roots? 1 by 2, 1 and minus 2. So अगर ये रूट्स और ज़ीरोस है इस पॉलिनोमियल के, तो ये क्या हो गए, वैल्यू ऑफ x हो गया, ठीक है. सो हेंस दिस वैल्यू ऑफ x विच आई कैन टेक इट एज x इज इक्वल्स टू 1 by 2 और x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू माइनस 2, ठीक है. सिंस इट इज़ क्यूबिक इक्वेशन, हमारे पास 3 रूट्स होते हैं, राइट, और 3 ज़ीरोस होते हैं. दैट्स वाई वी हैव 3 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, राइट. सो हेंस these are the roots or these are the zeros of the given polynomial. If you substitute the each value of x in the polynomial, अगर ये सारे numbers को और roots को 1 by 1 आप अगर p of x में substitute करेंगे, तो ये p of x का वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, राइट. सो नाउ मैं पहला वैल्यू को लेती हूँ. अगर x इज इक्वल्स टू 1 by 2 लेती हूँ, तो p of x को क्या होना चाहिए, p of x हो जाता है p of 1 by 2. क्यों? क्योंकि मैं p of x के जगह 1 by में 2 सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, 1 by 2 सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, ठीक है. सो इससे पहले मैं लिख लेती हूँ ताकि मुझे इजी हो जाए. 2x³ प्लस x स्क्वायर 5x प्लस 2, ये रहा हमारा p of x. सिंस मैं इस रूट को एवेल्युएट कर रही हूँ, सो मैं ये वैल्यू 1 by 2 लेती हूँ इधर. तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 by 2 होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है. और x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 by 2 होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x इज इक्वल्स टू 1 by 2 ले रखा है हमने, तो मैं इसको सब 1 कहती हूँ. और माइनस 5 इंटू 1 by 2 हो जाएगा, क्योंकि 5 इंटू एक्स है, ठीक है, प्लस 2. ना इसको हमको सॉल्व करना है. 2 1 by 2 क्यूब यानी क्या होता है, 1 by क्यूब अपॉन 2 क्यूब होता है, ठीक है, प्लस 1 by 2 होल स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर होता है. माइनस 5 इंटू 1 by 2 क्या होता है, 5 इंटू 1 5 होता है और डिवाइडेड बाई 2 होता है, प्लस 2 होता है, ठीक है. सो इसको और हम सॉल्व करेंगे. 2 इंटू 1 क्यूब, ओके, ये इंटू है, 2 इंटू 1 क्यूब इज़ 1 और 2 क्यूब इज़ 8, करेक्ट. प्लस इधर क्या होता है, 1 स्क्वायर 1 होता है, 2 स्क्वायर 4 होता है, माइनस 5 by 2 होता है और प्लस 2 होता है इधर. सो हमको पता है इसको डिवाइड कर सकते, 2 1 जा 2 4 जा हो जाता है. सो इसको हम 1 by 4 लिखेंगे, प्लस 1 by 4 है इधर, माइनस 5 by 2 है, प्लस 2 है. सो आप देख रहे हैं इधर क्या है, सारे इसमें 4 और 2 है, ओके. इसको एलसीएम भी ले सकते हैं, अगर आपको एलसीएम लाइक ऐसे ही नहीं आता है तो एलसीएम ले लीजिए. सो 2 है और 4 है, 1 है, 1 को हम नेगलेक्ट कर देंगे. सो 2 1 जा होता है, 2 2 जा 4 होता है और 2 1 जा होता है. सो अभी हमारा एलसीएम क्या है, 2 इंटू 2 4 है, राइट. सो 4 लेंगे इधर. सो ऑलरेडी आपको इधर 4 है, कुछ मैनिपुलेट करने की ज़रूरत नहीं है. सो न्यूमरेटर भी 1 ही ऐसे ही रहेगा, ठीक है. सो इधर नीचे भी 4 है और एलसीएम भी 4 है आपका, सो 1 ऐसे ही आएगा. सो ए साइन है जो माइनस इधर लिखूँगी, और इधर देखिए 2 है लेकिन आपका एलसीएम 4 है. सो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने से, ओके, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, 4 होता है, राइट. मैं इसको डिफरेंटली, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 4 होता है, आपका एलसीएम आ जाता है. सो इसी चीज़ को मैं ऊपर भी करूँगी, ठीक है. सो 5 इंटू 2 क्या होता है, 10 होता है, ठीक है, और प्लस जैसा है वैसे ही लिखना. सो इधर 1 है लेकिन हमारा एलसीएम क्या है, 4 है. सो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, 4 होता है. और इसको भी हम जो इधर डाउन ले लेते हैं वो उसी को हमको लिखना पड़ेगा ऊपर. सो 2 4 जा क्या होता है, 8 होता है. सो इधर हमारा वैल्यू 8 हो जाएगा, ठीक है. सो अभी देखिए कैसे करते हैं. ये प्लस 1 है, प्लस 1 है, सो 2 होता है, ठीक है. और ये माइनस 10 को ऐसे ही लिखिए और प्लस 8 को ऐसे ही लिखिए और अपॉन 4 लिखिए, ठीक है. सो ये 2 माइनस 10 क्या होता है, सिर्फ 2 और माइनस 10 ले लीजिए, इस और इस नंबर को ले लीजिए. 2 माइनस 10 क्या होता है, ए प्लस 2 होता है, माइनस 10 होता है. सो हमको पता है डिफरेंट साइन होने में हमको सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है. 10 माइनस 2 8 होता है
और ये जो माइनस साइन है बड़ा नंबर के लिए माइनस साइन है, सो -8 हो गया, करेक्ट, यस और नॉट। सो इसलिए ये -8 होता है और ये चीज़ +8 होता है, ठीक है। और बाई 4 हमको पता है -8 + 8 क्या होता है, 0 होता है। 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग क्या होता है, 0 होता है। सो आपको पता है ये क्या चीज़ थी, ये P ऑफ 1/2 थी। इसका मतलब है P ऑफ जो 1/2 था वो इक्वल टू 0 हो गया, यानी P ऑफ x, ओके, व्हेन x टेकन एज 1/2 यू गॉट 0, ओके। इसका मतलब क्या है, सो ये जो रूट और 0 1/2, ओके, 0 और रूट, ओके, which is that when x is equals to 1/2 P of x is 0, okay, that is nothing but x is equals to 1/2 is a root of P of x, करेक्ट, ये प्रूव हो गई। ऐसे हमको 2 और ज़ीरोज़ के लिए भी करना पड़ेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या था हमारा वैल्यू x इज इक्वल्स टू 1 था। सो इसको क्या करेंगे हम P ऑफ x में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। सो क्या था हमारा एक्सप्रेशन, 2x³ था प्लस x² था माइनस 5x था और +2 था। सो अभी क्या हो गया, x का वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। सो मैं क्या करूँगी, 2 इंटू एक्स में 1 सब्स्टिट्यूट करूँगी। सो ये x³ था, सो इसलिए 1³ हो गया। इधर 1² होता है, -5 इंटू 1 होता है, +2 होता है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 1³ क्या होता है, 1 ही होता है, राइट। सो प्लस 1² क्या होता है, 1 होता है, -5 इंटू 1 5 होता है और +2 होता है, ठीक है। 2 इंटू 1 क्या होता है, 2 होता है, +1 होता है, -5 होता है, +2 होता है, ओके। सो 2 + 1 क्या होता है, इस चीज़ को मैं 3 करूँगी, -5 ऐसे ही लिखती हूँ, +2 ऐसे लिखती हूँ, ठीक है। सो ये क्या होता है, 3 - 5 क्या होता है, 3 - 5 यानी +3 - 5। सो इधर चेंज डिफरेंट साइन है, सो हमको सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है। 5 - 3 क्या होता है, 2 होता है। सिंस ए लार्जर नंबर है, लार्जर नंबर को सब्सट्रैक्शन का साइन है, आई मीन माइनस साइन है, सो माइनस होता है। सो -2 + 2 होता है। सो -2 + 2 क्या होता है, 0 होता है। सो जब आप रूट और 0 यानी x इज इक्वल्स टू 1 है, देन P ऑफ x 0 आया, राइट। सो दैट इज नथिंग बट x इज इक्वल्स टू 1 इज अ रूट ऑफ P ऑफ x, करेक्ट, यस। सो ये चीज़ हो गया। सो नेक्स्ट क्या है हमारा, और एक वैल्यू है x का, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है। सिंस एक क्यूबिक इक्वेशन है, हमारे पास 3 रूट्स और 3 ज़ीरोस आ जाएंगे, राइट। सो नेक्स्ट वैल्यू ऑफ x है -2, राइट। इसका मतलब क्या है, P ऑफ x में जब आप -2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपको P ऑफ x 0 आना चाहिए, तभी ये x इज इक्वल्स टू -2 P ऑफ x का रूट कहलाता है, ठीक है। सो वही चीज़ हम अगेन कर रहे हैं, ठीक है। सो P ऑफ -2, ओके, शुड बी क्या होता है, 2 इंटू -2 होल क्यूब, क्लियर, प्लस -2 होल स्क्वायर -5, इस चीज़ को क्या करना है, x को -2 करना चाहिए, +2। इधर ध्यान दीजिए क्योंकि इधर रॉन्ग होने में बहुत चांसेस है। सो नाउ 2 -2³ क्या होता है, -2³ यानी -2 इंटू -2 इंटू -2 होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, जो भी 2 इंटू 2 क्या होता है, 4 होता है। इससे हम क्या कर रहे हैं, -2 फिर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 4 इंटू 2 क्या होता है, 8 होता है। सो आपका आंसर -8 होगा इधर, ठीक है, -8। सो प्लस ये क्या होता है, -2 स्क्वायर यानी -2 इंटू -2 क्या होता है, -2 इंटू -2 माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 2 इंटू 2 4 होता है। सो ये चीज़ 4 हो गया, +4 हो गया। इधर देखिए -2 -5 -2 माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 5 इंटू 2 क्या होता है, 10 होता है। सो ये चीज़ 10 सिंप्लीफाई हो गया और ये 2 रखिए इसे, ठीक है। सो इधर देखिए नेक्स्ट स्टेप में 2 इंटू ब्रैकेट यानी 2 इट्स 2 इंटू, ओके, 2 के बाजू में ब्रैकेट करके एक नंबर हो गया तो ये मल्टीप्लाई। सो इधर ये प्लस है, ये अंदर में ब्रैकेट में माइनस है। प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 2 इंटू 8 क्या होता है, 16 होता है। लिखो नीचे प्लस, इधर सारे एडिशंस है, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या है ये, 4 + 10 14 होता है, +2 16 होता है। सो ये क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि
-16 + 16 0 होता है। सो इसका मतलब क्या है, जो भी हमने x = -2 वैल्यू लिया और उसको p ऑफ x में पुट किया तो वो 0 आ गया। सो x ऑफ -2 क्या होता है, इज़ अ रूट ऑफ p ऑफ x होता है। ठीक है, ये चीज़ ये सारे करने के बाद सिर्फ हमने पहला पार्ट जो था इतना इधर तक ही हम लोग सॉल्व किए, राइट। क्या क्या कहा था इधर, वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो आर देयर ज़ीरोस। ठीक है, जो भी हमको ये पॉलिनोमियल के साथ दिया हुआ था नंबर जिसको हम ज़ीरोस कहते हैं, वो इसी p ऑफ x का है कह के वेरीफाई करना था। तो कैसे वेरीफाई होता था, जो भी रूट्स होगा अगर वो वैल्यू ऑफ x होगा, ओके, रूट्स यानी ज़ीरोस कुछ भी कहे आप, वो x की वैल्यू होती है। वो जो पॉलिनोमियल और एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने से उसका वैल्यू 0 आना चाहिए, राइट। सो वही हमने किया, वो सभी वैल्यूज़ को जो भी हमारे पास क्यूबिक रूट्स थे उसको हमने p ऑफ x में सब्स्टिट्यूट किया और सारे में हमको p ऑफ x का वैल्यू 0 आ गया। तो इसका मतलब है वो सारे जो भी x का वैल्यूज़ दिए थे और ज़ीरोस और रूट्स दिए थे वो आखिर p ऑफ x के रूट्स ही थे। ओके, इसको हमने वेरीफाई कर दिया। अभी सेकेंड पार्ट में क्या है, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स इन ईच केस। ठीक है, क्या कह रहे हैं, ऑल्सो वेरीफाई द ज़ीरोस एंड रिलेशनशिप, ओके, रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स इन द ईच केस। सो हमको पता है जब हमारे रूट्स क्वाड्रेटिक होते हैं, यानी हमारा जब पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक होता है हमारे पास 2 रूट्स होते हैं, और जब हमारा पॉलिनोमियल क्यूबिक इक्वेशन होता है हमारे पास 3 रूट्स होते हैं। सो व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन दैट, ओके, वी विल सी। सो इधर सेकेंड पार्ट क्या होता है, द रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स, और आप ज़ीरोस भी कह सकते हैं इसको, रूट्स और ज़ीरोस ऑफ एंड कोएफिशिएंट्स, ओके, कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या होता है आपको शायद याद होगा, ओके। क्या होता है, हम अगर क्यूबिक है, इन केस p ऑफ x इज ओके क्यूबिक, क्या है हमारे पास रिलेशन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ओके। ये अल्फ़ा बीटा गामा क्या होता है मैं बता दूंगी, a = -b/, होता है, ओके। ये क्या होता है अल्फ़ा बीटा गामा, वेयर अल्फ़ा बीटा गामा आर ज़ीरोस और रूट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। यही होता है, जब आप सारे रूट्स को ऐड करेंगे उसका जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू आप जो कोएफिशिएंट है b एंड a उस ऐसे लिखने से उसको इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सो और एक वैल्यू है अल्फ़ा बीटा, जब 2 रूट्स को आप लाइक मल्टीप्लाई करके और ऐड करेंगे क्या होता है, वो होता है इक्वल टू c/a। और तीसरा होता है अल्फ़ा बीटा गामा, इस a इक्वल टू होता है -d/a। और ये b c d क्या है, ये a b c d जो है, अगर आप कुछ भी एक जनरल पॉलिनोमियल लेंगे, जनरल पॉलिनोमियल और p ऑफ x, ओके, लेंगे, कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे ax² प्लस ax³ bx² प्लस cx प्लस d, राइट। ये रहा हमारा स्टैंडर्ड और यू कैन से जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है ये। सो ये सारे जो है -b/a -c/a ये कोफिशिएंट्स है, ठीक है, कोफिशिएंट्स ऑफ ऑल दी व्हाट्स दिस पॉलिनोमियल, दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। सो हमारा जो इक्वेशन दिया है, क्या दिया है हमारा इक्वेशन, p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x³ दिया है, और क्या दिया है, x² दिया है सॉरी x² दिया है, और -5x दिया है, और +2 दिया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो मैं कंपैरिजन कर रही हूँ, ठीक है। इधर देखिए a और इधर कुछ भी नहीं है, मतलब ये 1 है, ठीक है। और इधर देखिए c का मतलब है दिस वन, d का मतलब है दिस। सो अभी लिखिए, क्या लिखते हैं अभी, a = 2 हो गया, ठीक है,
और b इक्वल्स टू 1 हो गया, और प्लस c इज इक्वल्स टू -5 हो गया, और d इज इक्वल्स टू 2 हो गया। ठीक है, जब हम कंपेयर करेंगे जनरल और जो दिया हुआ है हमको, वो दोनों क्यूबिक इक्वेशन कंपेयर करने से हमको सारे कोएफिशिएंट्स आ गए। तो क्या करना है हमको, अभी हमारे पास ये सारे वैल्यूज़ है और ये ज़ीरो वैल्यूज़ भी है, अल्फ़ा बीटा गामा भी है हमारे पास। सो अगर आपको LHS और RHS मिल जाएगा, और अगर आपको सारे रूट्स को ऐड करने से आपका वैल्यू, जब आप b-b/a लेंगे वो वैल्यू इक्वेट हो जाएगा, तब आपको जो रिलेशनशिप वेरीफाई करनी थी वो हो जाएगा। ठीक है, यानी सही है, सही लिया है आपने, जो भी आपको रूट्स दिया हुआ है वो सही है। लाइक तो अभी आते हैं सम को। सो अल्फ़ा क्या था हमारे पास, अल्फ़ा था 1/2, बीटा था 1 और गामा था -2। ये सारे हमारे रूट्स है, 3 रूट्स जो दिए हुए वो ही है अभी। सो मैं पहला कंडीशन क्या कर रही हूँ, हमारा ए है पहला कंडीशन, ए है दूसरा कंडीशन, ए है तीसरा कंडीशन। सो मेरा पहला कंडीशन जो था अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा था, उसको क्या करूँगी मैं ऐड करूँगी। अल्फ़ा 1/2 है, उसको मैं बीटा से ऐड करूँगी, फिर गामा से ऐड करूँगी। ठीक है, सो ये क्या है हो गया, हाफ प्लस 1 क्या होता है, ये 3/2 होता है। नहीं तो आपको एलसीएम लेना है तो ले भी सकते हैं। ठीक है, कैसे लेंगे, हाफ प्लस 1 कैसे लेंगे, 2 एलसीएम होता है, 2 इधर ऑलरेडी है, सो इसको भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा। इधर 2 डाउन में कुछ नहीं है, सो डिनोमिनेटर में 2, क्योंकि और एलसीएम और ए डिनोमिनेटर दोनों सही होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगी ऊपर। सो 1 × 2 2 होता है, सो 1 + 2 3 होता है, 3/2 होता है। ठीक है, सो ये 3/2 हो गया, -2 हो गया। फिर से आपको एलसीएम करना है तो कर सकते, सो 2 हो गया इधर। सो इधर ऑलरेडी 2 है डिनोमिनेटर में, सो सिर्फ इधर 3 लिखा जाएगा, और इधर 1 है, सो इसको 2 करेंगे क्योंकि एलसीएम 2 है, सो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 = 4 होगा। ओके, -4 होगा, सो इसका मतलब -1/2 हमको जो मिला है वो रहेगा। अभी देखो ये चीज़ अगर क्या था, ये अगर मैं अल्फ़ा बीटा गामा ऐड करूँगी तो क्या आना चाहिए था, इधर -b/a आना चाहिए था, राइट। सो अभी देखते हैं -b/a क्या है। अगर हम -b/a लेते तो क्या आंसर आता था हमको, देखो इधर ओके। सो इधर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होना चाहिए, -b/a होना चाहिए। सो माइनस क्या है, b क्या था हमारा वैल्यू 1 था, और एक वैल्यू क्या था 2 था, सो इधर भी -1/2 हो गया। ठीक है, सो ये जो वैल्यू आ गया और ये जो वैल्यू इधर है दोनों सेम है, इसका मतलब LHS इज इक्वल्स टू RHS। सो ये एक जो कंडीशन था वो पूरा हो गया, राइट। सो अभी नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, क्या है नेक्स्ट क्या है, अल्फ़ा बीटा और बीटा गामा, और गामा और अल्फ़ा को क्या होना चाहिए, c/a होना चाहिए। ओके, सो अभी देखते हैं अल्फ़ा क्या है हमारे पास 1/2 है, बीटा क्या है 1 है। ओके, इसको रखिए ऐसे ही, बीटा क्या है 1 है, गामा क्या है -2 है, इसको भी ऐसे रखे, ऐड करो, गामा क्या है -2, अल्फ़ा क्या है 1/2। ओके, इस चीज़ को हम सॉल्व करेंगे। क्या होता है 1/2 × 1 1/2 ही होता है, और माइनस लिखा है क्योंकि देखो अभी प्लस लिखती हूँ, 1 × -2। ओके, इसको पहले सॉल्व करो, 1 × -2 क्या होता है -2 होता है, प्लस इसको क्या करना, 2 और 2 कैंसिल करेंगे, लेकिन ये प्लस इंटू माइनस है, सो इसको माइनस करना पड़ेगा, इधर ये माइनस हो जाएगा और 1 ही हो जाएगा इधर। सो ये देखिए 1/2, ये प्लस इंटू माइनस -2 -1 है, सो इसका मतलब क्या है 1/2 -2 -1 क्या होता है -3 होता है। सो अभी इसको सॉल्व करो, क्या होता है 2 है आपका LCM, सो इधर 2 ही है, सो ऊपर का जैसे है वैसे ही लिखेंगे हम, माइनस इसका एक 1 है, सो इसको 2 करना चाहिए, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट इज़ -6 हो जाएगा। तो +1 -6 -5 होता है, /2 होता है। सो ये चीज़ किसको इक्वेट करना है, c/a, राइट। सो आप देखिए इसको c/a से सेम है, -5c है, /2 क्या है, a है, यस। सो ये चीज़ भी प्रूव हो गई। ठीक है,
तो सिमिलरली हमको थर्ड कंडीशन पे जाना है। थर्ड कंडीशन क्या है, अल्फ़ा बीटा और गामा इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, माइनस डी बाई ए होना चाहिए, राइट। यस, सो ये अल्फ़ा बीटा गामा है, अल्फ़ा है 1/2, बीटा है 1 ना, यस, गामा है -2, ठीक है। सो ये रहा 2 and 2 कैंसिल होता है, सो ये चीज़ -1 हो गया। सो इस चीज़ माइनस डी बाई ए को इक्वेट होता है नहीं, वो देखना। सो माइनस डी क्या है, 2 है, और ए क्या है, 2 है, ओके। सो इधर देखिए, सो ये -1 इक्वल्स टू -1 हो गया, ठीक है। सो सारे LHS इक्वल्स टू RHS आ गए। सो ऐसे करने से क्या किया हमने वेरीफाई किया जो भी ये कोएफिशिएंट्स है और ये रूट्स है, दोनों में जो रिलेशनशिप था वो satisfy कर दिए, राइट। सो हेंस वी कैन से द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोस एंड द कोएफिशिएंट इज़ वेरीफाइड, ठीक है। मैं समझ रही हूँ आपको पूरी बात समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट भी अच्छे तरह से समझ में आ गया। सो कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में कह सकते हैं, ठीक है। ओके, सो इधर मैंने सेकेंड सम लिख लिया है। सो हमारा पॉलिनॉमियल इधर जो है वो है x³ - 4x² + 5x - 2। उसके साथ जो भी ज़ीरोस और रूट्स दिया हुआ था वो था 2 1 1। सो ये रूट्स और ज़ीरो क्या है, वो वैल्यू ऑफ x है, जिसको हम p ऑफ x में सब्स्टिट्यूट करने पे हमको वैल्यू ऑफ p ऑफ x 0 मिलेगा। इससे क्या होगा, इससे ये प्रूव हो जाएगा कि जो दिए हुए हैं ज़ीरोस और रूट्स वो p ऑफ x के ही है, ठीक है। सो इसको हम लोग फर्स्ट पार्ट में वेरीफाई करना है, ठीक है। सो पार्ट 1 में वेरीफाई करना है। तो मैं इधर x का वैल्यू 2 लूँगी और एक x का वैल्यू 1 है और एक x का वैल्यू 1 है, ठीक है। सो पहले मैं x का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करूँगी p ऑफ x में। सो p ऑफ x क्या दिया हुआ है, x³ - 4x² + 5x -2 है। सो p ऑफ 2 डालने से क्या होगा, इधर p ऑफ 2 डालने से क्या होगा, 2³ होगा -4 × 2² होगा +5 × 2 होगा और -2 होगा। सो 2³ यानी 2 × 2 × 2। सो इसको करने से 8 मिलेगा, +4 × 2² यानी 4 होगा, +5 × 2 = 10 होगा, -2 होगा, ठीक है। सो 8 - 4 4 = 16 है, +10 -2 है। सो इधर देखिए 8 - 16 में क्या होता है, ये प्लस था और ये माइनस था। सो ये डिफरेंस ऑफ साइन रहने से हमको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। 16 - 8 8 होता है, और सिंस ए बिगर नंबर को माइनस साइन है मैं -8 लिखूँगी। प्लस इधर देखिए ये दोनों नंबर भी हम एट अ टाइम सॉल्व कर सकते हैं। 10 - 8 क्या होता है, 8 होता है इधर, सॉरी 10 - 2 क्या होता है, 8 होता है। सो -8 + 8 0 होता है। सो आपने देख लिया, अगर x को हम 2 लेते हैं, रूट्स जो दिया हुआ था उसको हम p ऑफ x में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमको 0 मिल जाएगा, ठीक है। सो इसी हिसाब से अगर हम x = 1 लेंगे और उस p ऑफ x में सब्स्टिट्यूट करेंगे, x³ - 4x² + 5x - 2। सो क्या होता है, p ऑफ 1 = 1³ होता है, -4 × 1² +5 × 1 होता है और -2 होता है, ठीक है। 1³ यानी 1 होता है, -4 × 1 4 होता है, +5 × 1 5 होता है और -2 होता है, ठीक है। सो इसको सॉल्व करो। +1 - 4 क्या होता है, -3 होता है, क्योंकि 4 - 1 3 होता है और लार्जर नंबर 4 है, उसको माइनस साइन है, सो माइनस ले लिया। प्लस ये चीज़ क्या होता है, 5 - 2 3 होता है। सो -3 + 3 0 होता है, ठीक है। सो इधर देखिए ये दोनों भी रूट सेम है, इसलिए मुझे दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि x = 1 कितना बार भी आप p ऑफ x में डालेंगे वो 0 ही आएगा। सो सिंस ये दोनों रूट सेम है, मैं एक ही बार सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सारे रूट्स को p ऑफ x 0 ही आएगा, क्योंकि वैल्यू ही सेम है, p ऑफ x का वैल्यू सेम है, ठीक है। सो ये फर्स्ट पार्ट थी वो वेरीफाई हो गई।
सो सेकेंड पार्ट क्या है हमारा, सेकेंड पार्ट है वेरीफाइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। सो इधर मैं शॉर्ट में लिखूंगी रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, ओके, कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x लिखूंगी शॉर्ट में। तो वो क्या होता है, अभी तो मैंने बताया था अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा लेंगे तो उसको क्या आना चाहिए, माइनस बी बाई ए आना चाहिए। और अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा और अल्फ़ा ले लिया तो आपको c बाई ए आना चाहिए। और अल्फ़ा बीटा गामा आपको क्या इक्वल टू होगा, वो d माइनस डी बाई ए होगा। इसको हमको वेरीफाई करना है। कैसे करेंगे, हमारे पास जो पॉलिनोमियल था वो था p ऑफ x ए गिवन पॉलिनोमियल है, क्या है वो, एक्स क्यूब है माइनस 4x स्क्वायर है प्लस 5x और माइनस 2 है। जो जनरल है वो क्या है, ax क्यूब है प्लस bx स्क्वायर है और cx प्लस d है, राइट। सो हम देखो इधर कुछ भी नहीं है तो ये a का कोफिशिएंट ये है, b का कोफिशिएंट ए है, c का कोफिशिएंट ए वाला और d का कोफिशिएंट ए वाला, ठीक है। सो इधर लिख लीजिए। सो इधर क्या हो जाएगा, ये a इज इक्वल्स टू 1 होगा, b इज इक्वल्स टू माइनस 4 होगा, c इज इक्वल्स टू 5 होगा और d इज इक्वल्स टू माइनस 2 होगा। सो अभी देखो हमारे पास अल्फ़ा बीटा गामा यानी वो क्या है, अल्फ़ा इक्वल्स टू 2 है, ये रूट्स है, ठीक है, बीटा इक्वल्स टू 1 है, गामा इक्वल्स टू 1 है, ओके। सो आपको पता था हमारा दो भी रूट्स जो है वो सेम है, ठीक है। सो अभी देखिए फर्स्ट कंडीशन जो था 1, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होना चाहिए, वो माइनस बी बाई ए को इक्वेट होना चाहिए। सो इधर 2 प्लस 1 प्लस 1, ओके, 2 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 4 होता है। सो आप देखो माइनस बी बाई ए क्या होता है, माइनस बी यानी माइनस ऑफ बी क्या है, बी भी माइनस 4 है और ए क्या है 1 है, माइनस इंटू माइनस करने से प्लस 4 होता है। सो आप देखिए जो अल्फ़ा बीटा प्लस गामा किया वो LHS था और माइनस बी बाई ए किया वो RHS था। सो दोनों बराबर हो गए, राइट। सो इसका मतलब ए फर्स्ट कंडीशन जो था वो सेटिस्फाई हो गया। और सेकेंड क्या था, अल्फ़ा बीटा करने से प्लस बीटा और गामा और अल्फ़ा किसको इक्वेट होना चाहिए, वो c बाई ए को इक्वेट होना चाहिए, राइट। सो क्या करते हैं हम, अल्फ़ा 2 है और बीटा 1 है प्लस बीटा 1 है और गामा भी 1 है, गामा 1 है और अल्फ़ा 2 है। ये सब करने से क्या होता है, 2 इंटू 1 1 होता है, प्लस 1 इंटू 1 1 होता है, प्लस 1 इंटू 2 2 होता है। इसका मतलब एक 5 हो गया है, ठीक है। ये किसको इक्वेट करना चाहिए, ये रहा हमारा LHS। सो हमारा RHS क्या है इधर, c बाई ए है, राइट। सो c बाई ए क्या हो गया इधर, c हमारे पास 5 है और a हमारे पास 1 है। सो 5 बाई 1 क्या हो गया, 5 हो गया। सो ये रहा RHS। सो इधर देख लिया LHS इज इक्वल्स टू RHS, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चाह कर मैं दूसरा मेथड से कर रही हूँ ताकि आपको सारे मेथड्स समझ में आ जाए, ठीक है। सो आप जो भी मेथड कंफर्टेबल है आप वैसे कर सकते। सो नेक्स्ट में क्या है, अल्फ़ा बीटा और गामा है वो किसके इक्वेटेड होना चाहिए, माइनस डी बाई ए से इक्वेटेड होना चाहिए। सो अल्फ़ा है 2 हमारे पास, बीटा है 1 और गामा है 1। इसका मतलब 2 इंटू 1 इंटू 1 2 ही होता है, ठीक है। और ये LHS है और माइनस डी बाई है हमारा RHS। सो माइनस डी का वैल्यू क्या है, माइनस 2 है, ओके। माइनस ऑलरेडी हमारे पास है, डी का वैल्यू माइनस 2 है और ए का वैल्यू हमारे पास 1 है। सो इधर देखिए माइनस ऑफ माइनस प्लस होता है और 2 है, 2 बाई 1 2 होता है, ये RHS है, राइट। सो इधर भी देखिए LHS इक्वल्स टू RHS आ गया। तो सारे हमारे कंडीशंस प्रूव हो गए। इसका मतलब सेकेंड पार्ट भी हमने प्रूव कर दिया, ओके। हेंस द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट इज़ वेरीफाइड। होप आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगर जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी, ओके। सो टिल देन टेक केयर, कीप वॉचिंग माई चैनल, कीप स्टडिंग, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।